Hello students, welcome you all on the online platform of Madan Institute Bathinda. Today we are going to start with Master Cadre English exam. Okay, so first, as you know the syllabus, first today we are going to start with Indian English literature. So we have to understand, before starting any writer, we have to understand what is Indian English literature. Which writings consist in Indian writings English. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ IWE ਜਾਂ IEW ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ IWE। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਟਿਵ ਔਰ ਕੋ ਨੇਟਿਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟਰਸ ਹੈ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਸਟਿਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਰਕ ਕਿਸ 'ਚ ਆਏਗਾ? ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਹ ਹੈ 1794 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਬੁੱਕ ਆਈ ਬਾਈ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ। ਇਟ ਵਾਜ਼ travels of ਦੀਨ ਮਹਿਮਦ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਸੀ ਰਜੇ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਜਨਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਟਰੈਵਲੌਗ। ਟਰੈਵਲੌਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰੈਵਲ ਜਰਨੀਸ ਦਾ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਖੁਦ ਇਹੀ, ਰਿਟਨ ਬਾय ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਿਮਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਾਈਨ। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਟਰੈਵਲੌਗ ਬੁੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਫਸਟ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ 1794 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਜਨਰ ਸੀਗਾ ਟਰੈਵਲੌਗ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਡਰਾਮਾ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ? ਫਸਟ ਡਰਾਮਾ ਸਾਡਾ ਆਇਆ 1837 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦ ਪਰਸੀਕਿਊਟਿਡ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਵਰਕਸ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਵਰਕਸ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾय ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੋਹਨ ਬੈਨਰਜੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੋਹਨ ਬੈਨਰਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਨਰ ਕੀ ਹੈ? ਡਰਾਮਾ। ਇਹ ਫਸਟ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾय ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਨੈਕਸਟ ਵਰਕ ਆਇਆ ਸਾਡਾ 1864 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਮੋਹਨ's ਵਾਈਫ। ਰਾਜਮੋਹਨ's ਵਾਈਫ। ਇਹਦਾ ਜਨਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਨੋਵਲ। It was a novel written by Bankim Chandra Chattopadhyay। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵਰਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਵਰਕ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਿਖੇ। ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲੌਗ ਸੀਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਡਰਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦ ਪਰਸੀਕਿਊਟਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਆ 1837 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਨੋਵਲ, ਫਸਟ ਨੋਵਲ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਰਾਜਮੋਹਨ's ਵਾਈਫ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 8 ਦਾ ਡਬਲ ਕੀ ਹੈ? 6, 7 ਦਾ ਡਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 14। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਸ ਵੀ ਰਜੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਰਨ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਰ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਇੱਕ ਟਰਾਇਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਟਰਾਇਓਲੋਜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ? ਆਰ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਓ, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक पॉपुलर करता सीगा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर नूं, क्योंकि पहला इस तो इन्ना ज़्यादा नहीं मन्निया जाता सी। नैक्सट है मुल्क राज आनंद, ये तीनों के ट्रायो, इन्हां तीनों के ट्रायो नूं मन्निया जाता है कि ये साडे इन्होंने एस्टैबलिश किया। पर द थिंग इज कि इस ट्रायो नूं भी एस्टैबलिश होने लई एक बेस चाहिए सी, ठीक है। कोई अगर 3 पिलर मन्ने जाते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर दे कि इन्हां दे उपर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर खड़ा है, एक 3 पिलर है, तो 3 पिलर्स नूं खड़े होने लई एक बेस चाहिए। तो वो बेस किने प्रोवाइड किया सानू? रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो अगर आपां इंडियन इंग्लिश लिटरेचर नूं समझना है तो बिगिनिंग कित्थों करनी पऊगी सानू? रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि टैगोर ने इंडिया की हर एक चीज़ नूं आपदे जिहड़े वर्क्स है उहदे विच डिपिक्ट किया है। अगर इन्हां नूं समझांगे तो आ सारिआं नूं एक सीक्वेंस दे विच करना, याद करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जिहड़े रविंद्रनाथ टैगोर है इन्हां दा बंगाली नेम सीगा रविंद्रो ठाकुर, रविंद्रो नाथ ठाकुर, क्योंकि बंगाली सी बाय नेम, तो इन्हां जिन्हें वर्क्स भी है उन्होंने भी आप इसे तरीके नाल प्रोनाउंस करांगे रविंद्रनाथ ठाकुर। बाय बर्थ इन्हां दा इह नेम ते इह स्टार्ट होया सी। फिर इन्हां दे सॉब्रिकेस बारे गल करदे हां कि इन्हां नूं होर किहड़े-किहड़े नामां नाल बुलाया जांदा सी। इन्हां नूं बुलाया जांदा सी गुरुदेव, बार्ड ऑफ बंगाल, कोबीदेव, विश्वदेव। इन्हां अलग अलग नामां दे नाल इन्हां नूं बुलाया जांदा सीगा। हुण इन्हां दा मतलब की है? इन्हां दा मतलब है गुरुदेव, जिहड़ा पहला टाइटल मिलिया ये किहने दित्ता सी इन्हां नूं? महात्मा गांधी ने। एक्चुअली जे की होया सी, मोहनदास करमचंद गांधी नूं महात्मा कदों तो कहण लगे है, ओह जिहड़ा टाइटल है महात्मा दा रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी नूं दित्ता सीगा, ते गांधी जी ने इन रिटर्न इन्हां नूं टाइटल दित्ता गुरुदेव दा। क्वेश्चन बनदा है कि कदों किने टाइटल दित्ता? तां इह वाला टाइटल गांधी ने इन्हां नूं दित्ता है, ते इन्हां ने गांधी नूं किहड़ा टाइटल दित्ता है? महात्मा दा। नैक्सट आ रहा जे बार्ड ऑफ बंगाल। बार्ड की हुंदा है? पोइट, बंगाल दा पोइट। उवें कोबी भी पोइट नूं कहा जांदा है बंगाली दे विच, कोबीदेव या विश्वदेव। विश्व मीनस वर्ल्ड, इन बंगाली इट इज कॉल्ड विश्व। जिवें विश्व कहने असीं, विश्व की है? हिंदी का वर्ड है, तो ये की किया जाएगा? विश्वदेव। हाँ जी, हम जो 1910 और 12 दे विच W.B. यीट्स ने इन्हां बारे की किया? इन्होंने पूरे जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने की किया कि अगर तुसी रविंद्रनाथ टैगोर नूं पढ़ लिया, तुसी इंडियन सिविलाइजेशन पढ़ ली। सी रजे, एक कितनी वड्डी गल है, एक परसन नूं पूरी सिविलाइजेशन कह देना कि अगर तुसी रविंद्रनाथ टैगोर नूं पढ़ लोगे दैट मीनस यू कम टू नो अबाउट द होल सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। एक परसन नूं पढ़न दे नाल, क्योंकि इन्होंने इंडिया की हर एक पहलू नूं दर्शाया है, तो इस करके इन्हों की क्या यीट्स ने की क्या सी? द इंडियन सिविलाइजेशन। नैक्सट अजे इन्हां दे आपां पेन नेम करते हैं। पेन नेम सीगे इन्हां दे भौनिता, भौनिता एंड भानु सिन्हा ठाकुर। ये मन्निया जाता है कि किते ना किते इन्हां नूं डर सीगा। दिस टाइम इन्हां ने अपनी राइटिंग स्टार्ट की कि अगर, क्योंकि बहुत रिच फैमिली नूं, बहुत रेप्यूटेड फैमिली नूं बिलोंग करते सी, तो इन्हां ने सोचा कि अगर बाई चांस मेरे वर्क है जेडे ना सक्सैसफुल होए, तो इन्हां शायद उन्हां लाइक ऑनर लई, फैमिली के ऑनर लई अच्छा ना होवे, तो इन्हां ने अपने फर्स्ट जेडे वर्क्स है पहला पेन नेम्स के नाल स्टार्ट करवाए पब्लिश होने। उस तो बाद इन्हां ने अपना ओरिजिनल नाम रखा, दैट इज रविंद्रनाथ ठाकुर। अगर तुसी किते भी नाम पढ़ोगे इन्हां दा, रविंद्रनाथ टैगोर दा अगर किते भी नाम पढ़ोगे तो इन्हां दे नाम दे नाल रजे लिखा हुंदा FRAS। तो व्हाट इज दैट टर्म FRAS? ਇਹਦਾ मतलब की है FRAS ਦਾ? ਇਹਦਾ मतलब है फेलो ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਨਰ ਸੀਗਾ ਕਿ FRAS ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਸੀਗੀ ਫੈਲੋ ਆਫ ਰਾਇਲ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ 700 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਇੱਕ ਬਣੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮੈਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਨੋਵਲਿਸਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਰਸੇਟਾਈਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਰਾਮਾਟਿਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਨੋਵਲਿਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਰਾਈਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਰਾਈਟਰ। ਦੈਨ ਸਿੰਗਰ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਸਿੰਗਰ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪੋਜ਼ਰ, ਦੈਨ ਐਕਟਰ, ਖੁਦ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਪਲੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੇਂਟਰ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੇਂਟਰ ਸੀ ਅੱਛੇ ਵਾਲੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਪਲੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੈਨ ਪੈਟਰੀਓਟ ਸੀਗੇ, ਫਰੀडम फाइटर ਸੀ। 1 मिनट। ਪੈਟਰੀਓਟ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੀडम फाइटर ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਾਦੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਟਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਐਕਚੁਅਲ ਸੀ ਕੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸਕੂਲ ਸੀ। शांति निकेतन वॉज अ एक्सपेरिमेंटल स्कूल। अगर ਇਹਦਾ इंग्लिश ਆਪਾਂ नाम देखिए अवार्ड ऑफ पीस है, पीस ਦਾ ਘਰ। ਹੁਣ एक्सपेरिमेंटल स्कूल ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਜਕੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ 14 ਸਿਬਲਿੰਗ ਸੀਗੇ, 14 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸੀ ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਹੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਨਫਾਈਨਡ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਮਝਾਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਸ 'ਚ ਦਿਖਾਓ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਲਾਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਤਾ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਵੇਂ ਕਾਰਨਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਊਂਟਰਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत बिग यूनिवर्सिटी है, ठीक है, साउथ इंडिया दी, सॉरी बंगाल दी। सो दिस इज विश्व भारती यूनिवर्सिटी। हुण आपां गल करदे हां कि इन्हां ने इन्ना वड्डा नाम क्यों आपां इन्हां नूं कंसीडर करदे हां। ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ ग्लोरी टू इंडिया। इंडिया दे विच इह बहुत ज़्यादा ग्लोरी लैके आए। हुण देखो ग्लोरी की है, इन्हां नूं मिलिया फर्स्ट नोबेल प्राइज़। आज तक अपने इंडिया दे विच 10 नोबेल प्राइज़ मिल चुके अज तक आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, कितना टाइम हो गया, मोर देन 70 ईयर्स। ते ये फर्स्ट विनर सीगे नोबेल प्राइज़ के। हुण की सीगा कि यह की कंसीडर करांगे इन्हां नूं फर्स्ट नॉन यूरोपीयन
ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨੂੰ ਇਹ ऑनर नहीं मिलिया सी। ही वॉज फर्स्ट एशियन, obviously first Indian, so it was a big thing that he brings to India। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ऑनर ਸੀਗਾ ਇਹ बहुत ਵੱਡਾ ऑनर ਸੀ ਜਿਹੜਾ कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ तक 10 ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ फर्स्ट वाले ਆਪਣੇ नोबल प्राइज विनर है। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ वर्क ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ प्राइज है ਇਹ मिलिया क्यों? ਇਹ वर्क मिलिया ਸੀ गीतांजलि ਦੇ ਲਈ, ठीक है। ये ओरिजिनल ओदा पेज है उस टाइम का, गीतांजलि गीत एंड अंजलि, इनू आपां करांगे सॉन्ग ऑफरिंग। ਇਹਦਾ फुल नेम है सॉन्ग ऑफरिंग, अगर ट्रांसलेट करिए इन लेटर ऑन डिस्कस करते हैं, ठीक है। जिहदे इस वर्क के लिए इन्होंने मिले नोबेल प्राइज। और इन्होंने नाइटहुड का टाइटल मिलिया, पर की होया राजे जो नाइटहुड का टाइटल इन्होंने मिलिया क्योंकि जलियांवाला जो मैसेकर सी, ठीक है, सर दा नाइटहुड मीन सर, ये मिलिया इन्होंने 1915 दे विच, पर इन्होंने ये रिटर्न करता सीगा 1919 जो जलियांवाला बाग का इंसीडेंट होया, ठीक है। इन्ना ब्लड शेड होया, इन्ना मैसेकर होया, उस तो दुखी होके इन्होंने आ वाला जो टाइटल है जो महात्मा गांधी ने केसरी हिंद वापिस किया सी, तो इन्होंने जो आ टाइटल सीगा जो ब्रिटिशर्स ने इन्होंने दिता सी नाइटहुड का सर का, तो इदों 1919 दे विच इन्होंने इसनूं रिटर्न करता सी कि मैनूं थोड़ा टाइटल नहीं चाहिए, अगर तुसीं साडे ही मासूम लोगों को मार रहे हो सो सानूं यह टाइटल नहीं चाहिए। तो यह रिजैक्ट या इहदी आ सकदी डेट कि कदों रिजैक्ट किया गया तो कदों इहनूं रिटर्न किया गया। नैक्सट अजे आपां इन्हां दी हुण डेट ऑफ बर्थ इन्हां दी डिस्कस करते हैं। 7 मई 1861 डेथ हुई इन्हां दी 7 अगस्त 1941। हुण देखो ये इन्ने वड्डे पोइट सी, नेचर ने भी इन्हां दी सिंक्रोनाइजेशन की है 7 ताकि थोड़ा थोड़ा जा लर्न करना ईजी हो जाए। 1 1 टोटल ए सी इन्हां दी 80, ठीक है। तो इनू लर्न कर सकते तुसीं ईजीली कि इन्हां दे जिहड़े बॉर्न होए 7 मई 1861 दे विच, ते डेथ हुई इन्हां दी 7 अगस्त 1941। और ये किन्ने सिबलिंग सीगे? 14 सिबलिंग सी, उन्हां चों सब तो यंगेस्ट वन सी, सब तो छोटे सीगे। हुण इन्हां दी फैमिली दे विच जिहड़े मेन करैक्टर है जिहड़े सानूं जानने जरूरी है उन्हां नूं डिस्कस करदे हां। इन्हां दे फादर ते मदर है, देवेंद्र नाथ इन्हां दे फादर है और शारदा देवी इन्हां दी मदर है। पर होया कि जिस टाइम ये बहुत छोटे सीगे उस टाइम शारदा देवी की डेथ हो जाती है, जिहदे नाल आपां समझ सकते कि एक मदर की डेथ के नाल बच्चे उपर की बीतती है। सो इन्हां नाल भी उवें ही इन्हां ने दुख सहा हो। पर इन्हां दी जो सिस्टर इन लॉ सी कादंबरी देवी कौन है? इन्हां दी भाभी, क्योंकि 14 भैन भरा सी तो ये काफ़ी वड्डे सी इन्हां तो, इस करके इन्हां दोनों का इन्हां दे बड़े ब्रदर ज्योतिंद्र नाथ ते उन्हां दी वाइफ कादंबरी देवी का बहुत वड्डा इंपैक्ट रहा है इन्हां दी लाइफ दे विच, क्योंकि ये चीज़ां सानूं इन्हां दे वर्क्स भी दिखणगियां। बट जदों मृणालिनी देवी दे नाल, मृणालिनी देवी वॉज हिज वाइफ स्पाउस, ये इन्हां दी वाइफ है। जदों इन्हां नाल इन्हां दी मैरिज हुई, पता नहीं किस कारण करके, क्योंकि एक कारण किते नहीं दिता गया, ना ही अपने लिए यह इंपॉर्टेंट है कि कादंबरी देवी ने सुसाइड कर लिया सी। हुण होया कि इन्हां दी सुसाइड दे नाल रविंद्र नाथ टैगोर ने सेकंड टाइम आपदी मदर नूं खोता। तो तुसीं सोच सकते हो कि मदर का खोना तो एक बार बहुत वड्डा दुख है। तो इन्हां ने तो जिवें क्योंकि भाभी ने भी इन्हां जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने इन्हां एक बच्चे की तरह पालिया, तो इन्हां लई बहुत वड्डा दुख सी। तो ये आपां जो इन्हां दे वर्क्स दे विच भी सानूं दिखदा है। द ब्रोकननेस जो आपां अगे पढ़ांगे तो उहदे विच इन्हां ने इस चीज़ नूं ऑटोबायोग्राफिकली आपदा जो रिलेशन है आदि सिस्टर इन लॉ नाल एज अ मदर, उस चीज़ नूं इन्हां ने डिस्कस किया है। मृणालिनी देवी तो इन्हां दे 5 चिल्ड्रन सीगे। सो दिस इज़ अबाउट फैमिली जिहड़ा कि सानूं पढ़ना जरूरी सीगा, इन्हां दा बैकग्राउंड कि किस तो इन्हां दी फैमिली दे विच कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ां। हुण इन्फ्लुएंस किहदे तो सीगे? खुद इन्हां दे उपर किहदा प्रभाव सीगा? शेक्सपीयर दा। उन्होंने पढ़ते सी दांते दा और कालिदास दा। जदों इन्हों फॉरन भेजा गया पढ़न तो उत्थे भी थोड़ा स्प्लिट पर्सनैलिटी इन्हों कॉन्फ्लिक्ट आ गए सीगे कि मैं वैसटर्न साइड नूं अडॉप्ट करा कि मैं इंडिया दे विच इंडियन कल्चर नूं ही अडॉप्ट करा, उहदे नाल कंटिन्यू करा। हाँ जी, हुण गीतांजलि बारे आपां पढ़दे हां।
गीतांजलि जिहड़ा वर्क है अपना यह 1910 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬेल ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ 1910 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਕਸ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਔਰ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਹੈ 103, ਇਹ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ 53 ਔਰ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਈਆਂ। ਆ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਪੇਜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ WB ਯੀਟਸ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਨੇਮ। WB ਯੀਟਸ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਕਮਿਲਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਨਦਰ ਨੇਮ ਇਹਦਾ ਸੌਂਗ ਆਫਰਿੰਗਸ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, डिवोशन टू गॉड है, पैट्रियटिज्म दिखाया गया है। ये सारी चीज़ें बहुत सारी लाइक मल्टीपल थीम्स इस यूज़ किए रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये पेजिस किन्ने हैं, पेजिस तक आपां नूं पता होने चाहिए। ये पेजिस है टोटल 104। ये जी फर्स्ट लाइन है, आई होप तुसीं सारिआं ने पढ़ी होगी। ये पोइम लाइक जूनियर क्लासिस लगती है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हैड इज हेल्ड हाई। एक यूटोपियन टाइप का जो एक कंट्री है चाहते सी कि सब ऑनर दे नाल जीन, तो इन्हां ने यह पोइम लिखी सी, ठीक है, जिथे माइंड च कोई फियर ना होवे ते जिहड़ा असीं सिर आपदा सम्मान नाल एक ऑनर नाल चक सकीए। इस पोइम नूं रचे यूनैस्को दे विच भी जिहड़े कलैक्शन ऑफ रिप्रजेंटेटिव वर्क्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ भी पार्ट बनी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी इंक्लूड किया गया है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੋਬेल प्राइज़ आ कदों मिलिया सी इन्हां नूं 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ, एक साल बाद इन्हां नूं ਇਹ प्राइज़ मिलिया। ਹੁਣ इन्हां दे वर्क्स की गल करते हैं आपां। पहला आपां शॉर्ट स्टोरीज़ की गल करते हैं। इन्हां ने बहुत सारियां शॉर्ट स्टोरीज़ कीतियां, पर अपने उन्हां नूं डिस्कस करांगे जिहड़े कि अपने एग्जाम लई इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आ गई भिखारणी द बैगर वूमन। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ बंगाली नेम एज वेल एज इन्हां दे इंग्लिश नेम दोनों ही डिस्कस करांगे। बैगर वूमन दैट इज भिखारणी। बैगर्स देखिए दैट द थिंग। ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ 1877 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਇਹ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀ 16 ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। फिर आया राजे काबलीवाला। काबलीवाला आई होप सारे नूं पता है कितनी फेमस शॉर्ट स्टोरी है। ये आया सी 1892 दे विच। इहदे विच एक अफगान फ्रूट सैलर है रहमत, ते एक लड़की है छोटी जी मिनी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। उन्हां दी स्टोरी इन्हां ने लिखी है। नैक्सट स्टोरी आ गई मनभंजन वफादार वारिस होम कमिंग स्टोरी ऑफ अ मुस्लिम गर्ल। इन्हां दी आपां डेट्स नहीं लिखांगे क्योंकि ये कलैक्शनस दे विचों पार्ट्स लिते गए हैं, पर ਜਿਹੜੇ अपने इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम के लिए सिर्फ उन्होंने नाम आप इत्थे यूज़ किए हैं। हुण रजे इन्हों आप एक सीक्वेंस याद करते हैं। सीक्वेंस के याद करते हैं कि एक भिखारनी सी, समझ लो कोई रॉयल फैमिली की लेडी सी, जिहदी एज कितनी है हुण 77 ओहदी एज है, ठीक है। हुण वो की बन चुकी है आ बैगर वूमन, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सारे राजे कढ़ते सी, तो वो रॉयल फैमिली की लेडी सी, हुण बन चुकी है वो एक भिखारनी या बैगर वूमन। हुण ओनू कौन मिलता है, काबलीवाला। काबलीवाला किन्ने साल का है 92, क्वाइट ओल्ड। पर वह बहुत ज़्यादा सोचता है जो इनू मिलता है कि ये कौन है, क्योंकि बुढ़ा हो चुका तो वह सोचता है कि ये कौन है। जो उन्होंने पहचान आती है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा वफादार रहा होंगे, तो उन्होंने याद आती है कि ये मेरी क्वीन है, ठीक है। तो वह सोचता कि मैं इसका वारिस वापस लैके आऊँगा, होम कमिंग कराऊंगा, दैट मीनस उन्होंने वारिस नूं वापस लैके आऊँगा। तो अल्टीमेटली एंड च उन्होंने लभ भी लैंदा है। हुण वो कौन है जी वारिस लभदी है, वो कौन है, मुस्लिम गर्ल। तो एक सीक्वेंस इनू याद करोगे तो बाय एक याद करनी तुहानूं बहुत ईजी हो जानी है। हुण आपां रिवाइज करते हैं कि एक लेडी है भिखारनी 77 ईयर ओल्ड, उन्होंने एक काबलीवाला मिलता है जिहदी एज है 92। वो मनभंजन करता है, मनभंजन हुंदा सैल्फ एनालिसिस करता है, सोचता है कि सोच के उन्हें याद आता है कि मैं तो यदा बहुत वफादार रहा, तो मैं इस लेडी का वारिस लभ के लेके आऊँ, वो होम कमिंग कराऊँ, उन्होंने वापस लेके आऊँगा। तो जी वारिस लभदी है वो कौन है, मुस्लिम गर्ल। आई होप राजे कि सीक्वेंस अगर तुम सारे वर्क्स करोगे तो ईजी हो जाएंगे, थोड़ा बहुत लर्न करने। नैक्सट गल करते हैं आप इन्हों के नॉवल्स की। 12 नॉवल्स लिखे हैं, पर मेजर नॉवल्स आप डिस्कस करांगे। पहला है ब्रोकन नेस्ट। एक्चुअल च यह नोवेल है,
नोवेला राजे तुहानूं पता होएगा कि अगर जिहड़ा नोवेल है वो मिडल टर्म है, ये शॉर्ट स्टोरी तो बड़ा हुंदा है और नॉवल तो छोटा हुंदा है। जिहड़ी अपने लिटरेरी टर्म्स है उन्हां च भी करांगे। नोवेला की जो लेंथ है वो शॉर्ट स्टोरी तो ज़्यादा है और नॉवल तो घट है। तो ब्रोकननेस आपां कीता सी कादंबरी देवी की जी डेथ है ਉਹਦਾ जो डिस्क्रिप्शन है आपां नूं इत्थे मिलेगा। फिर आ गया चौखर बाली अ ग्रेन ऑफ सैंड, ये आया 1902 दे विच। द रैक, रैक किन्ने च आया 1906 दे विच। हाँ जी, अपना नैक्सट वर्क है जिहड़ा गोरा फेयर फेस, ये आया 1910 दे विच। एक ही है सर्च ऑफ आइडेंटिटी उपर है वर्क, सर्च ऑफ आइडेंटिटी, एंड इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉवल। ये टैगोर द लॉन्गेस्ट नॉवल दे विचों आंदा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ कि गोरा एक जो ब्रिटिशर है वो पालिया जाता है एक इंडियन फैमिली द्वारा। तो सारे नॉवल के आपकी आइडेंटिटी लभदा कि मैं बाकियां नालों अलग क्यों दिखदा। नैक्सट वर्क आ गया अपना होम एंड द वर्ल्ड, ये आया सी 1916 दे विच आफ्टर 6 ईयर्स। ये वाला वर्क आप करांगे तो इन्हां बारे आप डिटेल च पढ़ांगे। हुण इन्हां दा सीक्वेंस आप याद करते हैं एक स्टोरी बना के कि ब्रोकननेस आप कीता सी जो कादंबरी देवी जी की डेथ हो जाती है तो उदों इन्हां ने यह वाला नॉवल लिखिया सीगा। तो इनू एक सीक्वेंस बनाने हुण ब्रोकननेस मीनस किसी का जो घर है वो टुट गया, घर टुटिया, सारा घर किस कन्वर्ट हो गया सैंड दे विच, ग्रेन ऑफ सैंड दे विच कन्वर्ट होके बाद दे विचों बिल्कुल रैक हो गया। रैक मीनस डिस्ट्रक्शन। घर किहदा सीगा ये गोरा दा, क्योंकि गोरा हुण कित्थे आ गया इंडिया दे विच ते इंडिया नूं ही अपना की समझण लग गया वो होम एंड द वर्ल्ड। तो इस सीक्वेंस के नाल तुसीं ईजीली याद कर सकते हो। मीनस समवनस ब्रोकननेस, घरे बरे ਇਹਦਾ बंगाली नेम, किसी का घर टुटिया, घर टुट के सैंड च कन्वर्ट हो गया, सैंड च कन्वर्ट होके बिल्कुल रैक हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गई। और किहदा घर सी ये गोरा दा, और गोरा इंडिया नूं की समझण लग गया क्योंकि इत्थे जम्मिया पलिया हो द होम एंड द वर्ल्ड। हुण नाल नाल इहदियां डेट्स भी आपां याद करदे हां कि 1901 दे विच पहला घर सी जो टुटना शुरू होया, फिर एक साल दे विच ये बिल्कुल सैंड दे विच कन्वर्ट हो गया। 1901 दे विच ये वाला घर है जिहड़ा टुटना शुरू होया और सैंड च कदों कन्वर्ट हो गया 1902 दे विच, 2 साल और बिल्कुल खत्म हो गया 1906 दे विच। रैक हो गया कदों 1906। और घर किहदा सी ये गोरा दा जिहड़ा किन्ने साल दा 10 साल दा बच्चा है और जो वो मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इंडिया में ही पल रहा, बड़ा हो रहा है। तो जो 16 ईयर्स का वो हो जाता है तो उन्हें समझ आ जाती है, तो इंडिया में ही अपनी की कंसीडर करता है होम एंड द वर्ल्ड। इनू क्विकली रिवाइज करके देखो, इज इट गेटिंग क्लीयर। पहला सब तो पहला आप गल की है कि ब्रोकननेस है, इसका टुटिया होया घर है, कास्ट कन्वर्ट होया फिर सैंड दे विच, ते उस तो बाद की बन गया रैक किन्ने 1906 दे विच। गोरा जिहड़ा किन्ने साल दा 19 तक देखो सारे कॉमन है तो 10 याद रखा ये याद करने लई। तो गोरा किन्ने साल का 10 ईयर्स का, और जो 16 ईयर्स का होया थोड़ा बड़ा हो गया, समझ आने लग गई, तो उन्हें की समझा इंडिया नूं अपनी होम एंड लैंड समझन लग गया। फिर अजे ऑटोबायोग्राफी इन्हां दी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ आवर एग्जाम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम याद रखोगे द रेमिनिसेंस, और जो बंगाली नेम है जीवन समृद्धि। समृद्धि मीनस मैमरीज, ठीक है, आपके जीवन दियां मैमरीज। तो ये आई सी 1912 दे विच। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इसे ईयर की आई सी गीतांजलि। इहदे लई 1913 दे विच इन्हां नूं की मिलिया सीगा नोबेल प्राइज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स, एक सीक्वेंस आप इन्हां नूं याद कर सकते हो, रिलेट करांगे तो दोनों नूं ही याद करना ईजी हो जाएगा। फिर अजे इन्हां दियां पोइम्स है, पोइम्स दे विच आपां देखदे हां कि मेन 3 करांगे गीतांजलि तो बाद। एक है द आइडल वन, आई सी 1890 दे विच, फिर है गोल्डन बोट 1894 और फ्लाइट ऑफ क्रेन्स 1961। इन्हां दे बंगाली नाम है मानसी, इहदा गोल्डन बोट का नाम है सोनार तोरी और फ्लाइट ऑफ क्रेन्स का नाम है बलाका। ठीक, दैन ड्रामाज, इन्हां दे ड्रामाज है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ड्रामा आप देख रहे हैं वाल्मीकि प्रतिभा। जो वाल्मीकि प्रतिभा है द इंग्लिश नेम है द जीनियस ऑफ वाल्मीकि, इट केम इन 1881। यह रजे एक ओपरा है, ओपरा समझ जो गा के परफॉर्म होंगे। ये इन्हों ने खुद वाल्मीकि का रोल प्ले किया और प्रतिभा का रोल इन्हों की नीस ने प्ले किया। तो इनू भी आप याद करा सीक्वेंस के क्योंकि देखो सारे डेट वाइज ही लिखे हुए हैं। एसेटिक है जोड़ा, यदि डेट
ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਐਸਥੈਟਿਕ, ਇਹਨੂੰ ਜਸਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਜੇ ਆ ਐਸਥੈਟਿਕ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਵਾਲਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1890 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿੰਗ ਆਫ ਡਾਰਕ ਚੈਂਬਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 1910। पोस्ट ऑफिस 1912। राजी देखो 1912 च एक होर वर्क आ गया, और ये इंपॉर्टेंट भी एक चीज़ कि सिर्फ 4 दिन च लिखा गया सी, इट्स रिटन ओनली इन 4 डेज। फिर आ गया द अनटचेबल गर्ल, ये आया सी 1933 दे विच। इहनूं एक सीक्वेंस वांगू आपां याद करदे हां कि वाल्मीकि जी कौन है, एक तुहानूं सबनूं पता होएगा कि वाल्मीकि पहला की सीगे, एक डाकू सीगे, एक ठग सीगे, वाल्मीकि दा ठग, ठीक है। फिर वो जो 18 साल के होए तो वो की बन गए, एक असैटिक बन गए, एक सन्यासी बन गए। 18 साल की उम्र तो लैके 81 तक वो की बने रहे, एक सन्यासी। क्योंकि असैटिक का की मतलब हुंदा है, असैटिक का मतलब हुंदा सन्यासी। तो इहनूं इहदे नाल रिलेट करके आपां याद करांगे कि 18 साल की उम्र दे विच जिहड़े वाल्मीकि जी सीगे एक असैटिक बने, और किन्नी उम्र तक जिए वो 81 तक वो जिए, तो वो असैटिक ही रहे। फिर उन्होंने सैक्रीफाइस किया, ठीक है। सैक्रीफाइस किहदे लई कीता उन्होंने, किंग ऑफ डार्क चैंबर दे लई, किंग ऑफ डार्क चैंबर दे लई, जिहदे कोल किन्ने चैंबर सीगे, 10 चैंबर सीगे, तां करके उन्हों किंग ऑफ डार्क चैंबर कहा जाता सी, क्योंकि उहदे कोल किन्ने टोटल चैंबर सी, 10। जिहड़ा किंग ऑफ डार्क चैंबर है, यह बचाउणा चाहुंदा सीगा पोस्ट ऑफिस नूं, पोस्ट ऑफिस नूं बचाउण दे लई इहने सैक्रीफाइस कीता। तां करके किस तो बचाउणा चाहुंदा सी, एक अनटचेबल गर्ल, क्योंकि इहदा अजे जो बंगाली नाम है वो है चंडालिका। चंडालिका इस वर्क का जो ओरिजिनल बंगाली नेम है वो है चंडालिका। तो इनू भी आप एक सीक्वेंस करते हैं कि जोड़ा एक वाल्मीकि जी ने वो 18 साल तो लैके 81 तक की रहे असैटिक। उन्होंने सैक्रीफाइस किया किहदे लई, किंग ऑफ डार्क चैंबर दे लई, जो कि पोस्ट ऑफिस नूं बचाना चाहुंदा सीगा किस तो, चंडालिका तो। So revise this sequence so that you can learn all the works in a with date wise, chronologically तुसी इन्हां नूं कर सको। फिर अजे आ गया सॉन्ग्स, देखो कले सॉन्ग्स कले टैगोर ने ही किन्ने सॉन्ग्स लिखे हुए हैं, 2230 सॉन्ग्स इन्हां ने लिखे, जिन्हां अज किस नाम नाल जाना जाता है, रविंदो संगीत। ये आ सकता तुहानूं क्वेश्चन कि रविंदो संगीत दे विच किन्ने सॉन्ग्स है, द टोटल सॉन्ग्स आर 230। फिर अजे इन्हां दी होर इन्हां दे कंपाइल्ड जो, क्योंकि ये लैक्चर्स भी दिंदे सी अलग अलग जगह पर जाके, तो इन्हां दे सारे जिहड़े लैक्चर्स है उन्होंने कंपाइल किया गया, तो बुक का नाम रखा गया द रिलीजन ऑफ मैन। ये आई 1931 दे विच, ये बुक आई साडे कोल 1931 दे विच, द रिलीजन ऑफ मैन। फिर अजे सिर्फ यही एक ऐसे राइटर है जिन्होंने एक तो ज़्यादा कंट्री के लिए नैशनल एंथम लिखी है। फर्स्ट साडी की है जन गण मन, ये इंडिया लिए लिखा गया है। इंडियन की जी अपनी नैशनल एंथम है, जो कि अपने लिए बहुत रिस्पैक्टफुल चीज़ है, तो ये इन्होंने लिखी सी। ही वॉज द राइटर ऑफ इट, जिन्हों की फर्स्ट टाइम गाया गया सीगा इंडियन नैशनल कांग्रेस सैशन दे विच 1911, प्लेस सी कैलकटा। उस टाइम कोलकाता नहीं सी इहदा नाम, कैलकटा दे विच इहनूं 1911 दे विच गाया गया। और जदों सानू लाइक फ्रीडम मिली 1950 रिपब्लिक डे वेले 24 जैन नूं इहनूं एज अ नैशनल एंथम अडॉप्ट कर लिया गया सीगा। हाँ, तो सैकेंड आई बांग्लादेश। हुण बांग्लादेश की जिहड़ी नैशनल एंथम है वो भी इन्हां ने लिखी है, दैट इज अमार सोनार बांग्ला। ये वर्क इन्होंने लिखा सीगा पोइम, जिहदा इंग्लिश वर्जन है माई गोल्डन बंगाल। इनू लिखा गया सी 1905 दे विच। बंगाल पार्टीशन जी गल्लां होण लग गईयां सी, उहदे ओपोजिशन च इन्होंने लिखा सी। जिहड़ियां फर्स्ट 10 लाइन्स है इन्हां दियां, तां इनू अडॉप्ट किया गया एज अ नैशनल एंथम ऑफ बांग्ला। इनू अडॉप्ट किया गया सी जो पार्टीशन हुई है बांग्लादेश की 1971 दे विच, तां उहनूं अडॉप्ट किया गया इहदी नैशनल एंथम। थर्ड राजे मन्निया जाता है, क्योंकि ये अपने कोई रिटन डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है कि जी श्रीलंका की नैशनल एंथम है, किते किते आंदा कि ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, पर यदा कोई रिटन अपने को प्रूफ नहीं है। तो इनू आप कह सकते हैं इंस्पायर्ड बाय हिम, इट इज इंस्पायर्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। आई होप ये सारे जिन्ने भी सारे फैक्ट्स सीगे इन्हां दे बारे ये क्लीयर हो गए होने हैं। इन्हां दी जो वर्क्स की डिटेल है आप नैक्सट लैक्चर दे विच करांगे। सो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।